So, is my screen visible to you? Yes, of course. Yep. Okay. Yes, Anila. So, Yes, for visible those to us. who don't know me, my name is Anila Aur from Mehran University of Engineering Technology. I'm a second year student of computer systems. I recently graduated from Tech Karo as a web developer, and I'm serving as a web development team in Microsoft Learn Student Ambassador Women in Tech Society Jamshoro. So today's session is about Bootstrap. Before we go to our main agenda, that is the responsive design with Bootstrap, let's get into the theoretical knowledge. Is my screen visible to you? Yep. Yes, Anila. Yes, of course. Yes. Okay, so Bootstrap is widely used, is a massive tool. It's Bootstrap is free, open source front end library for web designing and web applications. It contains HTML and CSS based design templates for everything from typography, forms, buttons, navigation, and other interface components, as well as JavaScript extensions. So it is basically, in simple words, it is a CSS library or framework. So, what are the benefits of uh, Bootstrap? Is widely used in many of the top companies. For example, Twitter, Instagram, Facebook, Udemy, LinkedIn. Why? Because of its use. Um, for example, if you're browsing in any website, and if you happen to see, if you inspect it and you happen to see a class named container, that probably means that Bootstrap is used. It is a well-known class of Bootstrap. So it has its benefits. That is, it is completely free. ये बिल्कुल free है, and responsive designs. It is responsive design इसकी सबसे बड़ी खासियत है. It is mobile friendly, of course, क्योंकि अगर responsive design है तो mobile friendly तो होगा ही, and it is very easy to use and customizable भी है, क्योंकि to use Bootstrap we should have the knowledge of CSS to customize it, and it has pre-styled components, JavaScript plugins, and then it has a great grid system. Now, what is great grid system? It is basically the layout of the website, and it is a great community. If you're having any kind of problem regarding Bootstrap, there is a chance that that problem has occurred to someone else, and there might be a solution for it. So let's get into our agenda, that is responsive design with Bootstrap. Before we start with something, there are prerequisites, that is HTML and CSS, definitely. Those people who don't know the difference between ID and class, this session might not be for them, because we will be building a simple website, a very simple website for let's say beginner. So what you guys need to do, so it's a workshop, so I'll be providing a Git repository. You guys have to download the repository and definitely start coding. Follow my code, because we are going to build something together, so you guys have to follow my code. And then, boom. This is my first time having a tech talk and doing a live coding. So I don't know what will be the output, but sure it will be a website. So we will wait for the output. So let me share my repository with you guys. Are you guys able to hear me? Yes. Yeah. Yeah. Yes, Sure. Anila. Thank you. Thank you. Thank you. So I'm just going to copy the repository right now. Okay. Okay. ठीक है, अब मैंने repository send कर दिया है. If anyone, like if some of you guys want to really want to learn the Bootstrap, so you can work on this repository along with me. नहीं तो आप मुझे सुन भी सकते हैं. It's entirely up to you.
जब आप रिपोजिटरी अपने तरफ से डाउनलोड कर लें तो हम सिंपल एक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें से हम सिर्फ 4 कंपोनेंट्स पे फोकस करेंगे टू मेक इट इजी एंड शॉर्ट, जिसमें नवबार होगा, केराजोल होगा, फॉर्म्स एंड कार्ड्स का यूज होगा। तो हम इस पे इन चारों कंपोनेंट बेस पे एक वेबसाइट बनाएंगे। सो आर यू गाइस रेडी? लाइक आई शुड स्टार्ट कोडिंग, राइट? ओके ओके, मैं अपनी पूरी स्क्रीन अभी शेयर कर देती हूँ। मैंने एक की हुई है। Why is in there? Guys, give me a moment. Yes. मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी थैंक यू। सो अगर किसी ने रिपोजिटरी कॉपी की है या नहीं की, दैट्स फाइन, पर आई स्टार्ट कोडिंग। तो पहले Which ID you are इससे using, पहले madam? Excuse me. यस जी जी Which ID you are using? आईडी IDE is a Studio ID. it's Workplace VS वाला Live है. tool, Visual Studio, I think. Workplace. okay IDE, okay, that is Visual Studio Code. Is my screen not visible to you? Okay, I I'm not forgot to getting mention what the IDE. platform Okay, you are thank you. using, sir. So Okay, thank you. I wasn't getting. Okay, thank you. Thank you for confirming. So, we all know कि वेबसाइट जब पहले पहले बनती है उसकी नेविगेशन मेन्यू बनता है, नवबार इट इज कॉल्ड। सो उसके लिए हम एक सेमेंटिक टैग लेते हैं, दैट इज कॉल्ड हेडर। नहीं भी ले तो कोई मसला नहीं है, लेकिन टू बी इट्स अ प्रोफेशनल वर्क एंड ऑल्सो इट इंक्रीजेस कोड रीडेबिलिटी। तो हम नेविगेशन मेन्यू लेंगे। अब इसमें क्या है कि मैंने बूटस्ट्रैप की लिंक पहले से हेडर में और बॉडी के नीचे ही लिख दी हैं, तो इसकी वजह से बूटस्ट्रैप आई बी एबल टू यूज द बूटस्ट्रैप। तो पहले पहले हम नेविगेशन मेन्यू बनाने जा रहे हैं, ठीक है? तो नेविगेशन मेन्यू में जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, पहली क्लास है, हेलो, पहली क्लास तो है सिंपली नवबार। उसके बाद हम एक और क्लास लिखेंगे, नवबार एक्सपेंड। इसका मतलब होता है कि नवबार एक्सपेंड होगी विद द साइज ऑफ अ डिवाइस, और मतलब वो होगी SM मीन्स स्मॉल। इसके बाद हम नेविगेशन मेन्यू को एक कलर देंगे, देयर इज उसके लिए क्लास होती है BG डार्क, मतलब इसका बैकग्राउंड जो नेविगेशन मेन्यू का होगा डार्क होगा। उसके बाद हमारे पास फिर ये आता है कि हमेशा राइट साइड पे एक लोगो होता है, या किसी भी वेबसाइट का अपना नाम होता है। तो हमारे पास अभी लोगो नहीं है, तो आई जस्ट यूज नेम, लाइक हम बूटस्ट्रैप दे देते हैं उसे, ठीक है? और इस लोगो के लिए बूटस्ट्रैप की भी अपनी क्लासेस है, जैसे कि इट हैज द नवबार ब्रांड। तो लेट्स सी, is are you guys able to see my other screen where like other browser screen? Hiba? अनिला, आपकी सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड की स्क्रीन शेयरेबल है। आपने ब्राउजर की स्क्रीन अभी तक शेयर नहीं। Okay, my mistake, let me do it again.
गाइस एक मिनट. अभी मेरी स्क्रीन विजिबल है? No, ma'am. ओके. हिबा बताना. It's not visible. Yeah, it's visible now. मतलब ब्राउजर दिख रहा है ना? नहीं, ब्राउजर नहीं, आपका टीम्स दिख रहा है. ओके. अदीना, मुझे एक चीज कंफर्म करनी है, लाइक अगर हमें क्वेश्चन आंसरिंग यहीं कर लें या एंड में? आप एंड में कर ले. अच्छा चलें, ठीक है, थैंक यू. थैंक यू. Is there any problem you're facing, Anila, while sharing your screen? Yes, I'm not able to share my full screen, like whole the browser screen. हिबा, मैम डेस्कटॉप शेयर करें तो वो सारी आ जाएंगी. डेस्कटॉप का ऑप्शन आ रहा है आपके पास वैसे? नहीं, मेरे पास ये आ रहा है कि इनमें से कौन सी आपको स्क्रीन करनी है. कौन सी में कौन-कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास? ओके. Okay, let me try again. अब स्क्रीन नजर आ रही है गूगल क्रोम की? यस, यस. जी जी यार, ठीक है. यस. या तो हम यहाँ पर थे नवा ब्रांड Yes, पे. ये क्लास होती है. ओके, थैंक यू. ये क्लास होती है लोगों के लिए. यहाँ जो वेबसाइट का नाम होता है जो राइट साइड पे कॉर्नर पे दिखता है, उसके बाद हम एक बटन लेंगे. बटन वो इसलिए होगा क्योंकि जब जैसे ये स्क्रीन को हम ऐसे करेंगे तो लाइक रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो यहाँ पे वो बटन आना चाहिए, वो बार आइकन आना चाहिए जो मेन्यू दिखाए, एक्सपेंड करे, क्योंकि हमने नेविगेशन मेन्यू को एक्सपेंड क्लास दे दी है यहाँ पे. तो अब हमें एक बटन भी लेना है जो हमें
वो एक्सपेंड करा सके। उस बटन की भी क्लास है एक, जैसे नेवबार टॉगलर, क्योंकि वो नेवबार को टॉगल करता है, ऑफ एंड ऑन करता है। यस, उसके बाद इसका टाइप दे देते हैं बटन, एंड इस बटन के अंदर हम लेंगे, और पहले तो हम इसकी डेटा को टॉगल करेंगे। इसमें एक और चीज आती है, डेटा टॉगल। मतलब कि डेटा टॉगल होगी तो कैसी होगी, दैट इज कोलैस। और उसके बाद आता है डेटा टारगेट, मतलब किस डेटा को ये टारगेट करेगा। वो हम देंगे उसे एक वो आईडी होगी जो नेव बार की होगी, लेकिन हम उसमें इस डेटा टारगेट में उसे पास कर देंगे। लेट्स से हम उसको दे रहे हैं नेव बार ड्रॉप, ओके, ड्रॉप डाउन। बटन के अंदर ही हम लेंगे एक वो बार का आइकन भी हमें लेना है ना, क्योंकि सिर्फ क्लिक करने से क्या होगा। उसकी भी एक क्लास है जिसे हम लेंगे see what happens or not। ओ अच्छा गाइस, मैंने लिंक करना भूल गई मैं, एक मिनट, प्लीज गिव मी अ मोमेंट। सीरियल लिंक मैं यूज कर रही हूँ आइकन्स के लिए, वरना आइकन हमारे दिखेंगे नहीं। लेट्स सी इफ इट वर्क्स, स्टिल नॉट, ओके, कोई बात नहीं। चलो बटन हो गया। अब हम लेंगे कि कौन सा नवबार बनाना है। अब नवबार हम बनाने जा रहे हैं जो एक्चुअल होगा, एक्चुअल में उसको हम दो क्लासेस देंगे, लाइक नवबार कोलैस। और एक आईडी देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जो डेटा टारगेट की आईडी दी है ना, वो यहाँ पर देंगे ताकि पता चले कि बटन किसको टारगेट कर रहा है। इट्स कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि एरर ना हो। एक और देते हैं एरिया कंट्रोल्स। अब हम यूएल लेंगे। यूएल देयर इज द ये अब हमारी एक्चुअल नेव बार होगी, जिसमें हम इसमें भी कुछ क्लासेस हैं, जैसे नव बार, नव, ठीक है, एंड हम इसमें लेंगे एल आई। अब एल आई की भी एक क्लास है, नव आइटम। फिर इसमें आता है एंकर, नव लिंक। यहाँ पर हम होम दे देते हैं। Let's see what we have created। सही है, तो हम इसको अब कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बूस्टरअप को ऐसे यूज नहीं करते, हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ लर्निंग आई एम डूइंग दिस। ओके, दिस इज सम एरर। Guys, give me a moment. I have done some mistake, I guess.
अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम बूटस्ट्रैप से डायरेक्ट ही क्लास को नेविगेशन मेन्यू को ले लेते हैं। यहाँ पर हम आएंगे। ओह, हम ऑलरेडी इसमें हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम इसे कॉपी कर देते हैं टू अवॉइड मिस्टेक्स। These are the colors. हम कौन सा लेते हैं, हम यहाँ पे चूज करते हैं, लाइक फर्स्ट वन। नो, चलो हम ये ले लेते हैं, सही है। इसको हम कलर दे देते हैं बीजी बीजी डार्क। क्या होता है, सी नो। ठीक है, ये हमारा नेविगेशन मेन्यू बन गया है। हम इसको मॉडिफाई करेंगे हमारे हिसाब से। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो नेविगेशन है, हम यहाँ पे से राइट साइड पे ले आते हैं, वो बेटर रहेगा क्योंकि ट्रेडिशनली ऐसा ही होता है। उसके लिए हम इस क्लास यूज करते हैं ML। यस, सही है। होम फीचर्स, प्राइसिंग। हम एक रैंडम वेबसाइट बना रहे हैं, तो कंटेंट क्या है हम उसकी फिक्र नहीं करते हैं। इसके बाद हम कैराजोल पे चलते हैं। तो कैराजोल क्या होता है, वो स्लाइडर होता है, जो मतलब यहाँ से इमेजेस होती हैं वहाँ पे स्लाइड हो रही होती हैं। तो वो हम लेने जा रहे हैं अभी, बल्कि I'll just create it hopefully। अनीता, मुझे यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, अगर इफ पॉसिबल तो कैन आई आस्क? जी जी। सबसे पहला ये सवाल है कि जो नेव बार है वो जैसे लाइक 2 हिस्सों में भी टूटती है। वन इज अ वाइट एंड देन सेकंड, अगर हम कोई भी उस पे बैकग्राउंड कलर दे दें, शायद आपने देखा होगा बहुत सारे टेम्पलेट्स में होती हैं, तो वो किस तरह काम करती हैं? उसके लिए कोई आईडी वगैरह, क्लास वगैरह, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें इफ हो। मतलब आप कह रहे हैं कि नेव बार के हम कलर चेंज करें? हाँ, कलर चेंज करें और नेव बार को 2 हिस्सों में स्प्लिट करें। 2 हिस्सों में मैं समझी नहीं। अच्छा, मेरे कहने का मकसद ऐसे है कि नेव बार को हम 2 हिस्सों में करें, दोनों के कलर चेंज हों और मतलब एक ही लाइन में हो वो। आप कोई भी टेम्पलेट्स वगैरह देख मतलब बहुत सारी वेबसाइट में ऐसे होता है ना, जो लोगो वाला हिस्सा होता है वो वाइट कलर का होता है, देन उसके अलावा बटन्स वाला होता है तो वो किसी और कलर में होता है। तो मैं इस तरीके से कह रहा हूँ। वो तो हम CSS से करते हैं ना। अच्छा, बूटस्ट्रैप में इसकी कोई क्लास वगैरह या कोई इस तरीके से यूज? दे कैन बी, बट मेरी नॉलेज में नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात, थैंक यू। थैंक यू। तो हमने बूटस्ट्रैप का एक और कंपोनेंट लिया है जो कि कैराजोल है। वो एक स्लाइडर होता है, उसमें हम इमेजेस को इंपोर्ट करते हैं। ये कैराजोल का एज एन कंटेनर्स है, मतलब इसकी क्लास है कैराजोल, और ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा। और इसके डेटा राइट कैराजोल, मतलब कि अगर जब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो वो डेटा कौन सी होगी, वो मतलब स्लाइडिंग होगी, कैराजोल ही होगा। उसके बाद हम लेते हैं एक डेव, जिसमें हम कैराजोल इनर क्लास देते हैं। उसमें हम कैराजोल के जितने आइटम्स हैं जो मतलब स्लाइड हो रहे होते हैं वो हम लिखते हैं। मोस्टली वो इमेजेस होती हैं, लोग कार्ड्स भी यूज़ कर लेते हैं, पर हम यहाँ पर इमेजेस यूज़ करेंगे।
सो लेट्स सी हमने क्या बनाया है। ओके, तो हमारा कैरोसेल बन गया है। इसके बाद हम कार्ड्स यूज करने जा रहे हैं। तो अब कार्ड्स के लिए हम क्या करते हैं कि एक सिंपल सा सेशन लेते हैं। ये हम अबाउट अस दे देते हैं। जस्ट कंटेंट को हम नहीं देखते हैं क्योंकि हम जस्ट सिंपली एक वेबसाइट बना रहे हैं। तो उसके बाद हम क्लास देंगे, वो है कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड क्या होती है कि वो एक लेआउट बनाती है जिसमें से एक पर्टिकुलर पैडिंग और मार्जिन होती है। लाइक वो बहुत ही रिस्पॉन्सिव होती है। हम अबाउट सेशन बनाने जा रहे हैं जिसमें से हम एक साइड पे इमेज रखेंगे, एक साइड पे उसका एक डेटा रखेंगे। तो उसमें हम रो क्लास यूज करते हैं। अब रो बेसिकली क्या होता है, दिस इज द ग्रिड सिस्टम ऑफ द बूटस्ट्रैप। ग्रिड सिस्टम में क्या होता है कि हम रोज और कॉलम्स में लेआउट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक रो 12 कॉलम्स के बराबर होती है। इट मीन्स कि अगर हमें पूरी की पूरी रो एक ही कॉलम में चाहिए तो हमें उस रो को कॉलम 12 देना होगा ताकि वो पूरा हो जाए, वरना हम उसे 12 में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक 3 3 4 4। अगर 4 में कर रहे हैं तो हम उसे 3 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। अगर हम 3 में करें तो उसे हम 4 कॉलम्स में डिवाइड कर रहे हैं, एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पर लेंगे और क्या चीज, जैसे हम यहाँ पर हेडिंग ले लेते हैं। इसकी एक क्लास दे देती हूँ मैं, हेडिंग अबाउट अस। यस, ये मैंने थोड़ी स्टाइलिंग खुद से की हुई है। ओके, हम रो यहाँ पे नहीं लेते हैं क्योंकि मैंने हेडिंग गलती से दे दी है। रो हम यहाँ पर देंगे, आई मीन हेडिंग यहाँ पर देंगे, रो नीचे होगी ताकि हम कॉलम्स अच्छे से बना सकें। तो मैं 12 में से 2 कॉलम्स लूंगी जिनको हम मैं 6 कॉलम्स में डिवाइड करूंगी। कॉल LG मीन्स लार्ज में वो कितने कॉलम्स लेगा, 2 ही लेगा। एंड कॉल MD मतलब कि वो मीडियम साइज में कितनी लेगा। एंड कॉल 12, कॉल मीन्स सिर्फ ये मोबाइल डिवाइसेस के लिए है। तो मोबाइल डिवाइसेस में ये 12 के 12 ही कॉलम्स लेगा। ओह ओके, माय मिस्टेक है यहाँ पर, हम डिव ले रहे हैं एक्चुअली में, मैंने मिस्टेक कर दी। सो हम इसको कॉपी करेंगे 2 बार क्योंकि हम से यहाँ पे एक इमेज लेंगे और यहाँ पे एक कंटेंट लेंगे, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे एक कार्ड लूंगी मैं, ये भी एक बूटस्ट्रैप की क्लास है, ये भी बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स है कार्ड। उसमें मैं एक इमेज लूंगी जिसमें इमेजेस कौन सी इमेज लेनी है, लेट्स से गैलरी JPG, सी व्हाट हैपेंस। अब जस्ट रैंडम इमेज, तो इस चीज को आप इग्नोर कर दें। इसमें एक क्लास आती है जिस वो है इमेज फ्लूइड, जो कि इमेज को भी रिस्पॉन्सिव बना देती है। यस, अब ये रिस्पॉन्सिव है। और यहाँ पे हम लाइक ऐसे देते हैं कि व्हाट इज बूटस्ट्रैप, हम इसकी एक ऐसी डेटा दे देते हैं, व्हाट इज we have created, yes। और फिर हम एक पैराग्राफ लिखते हैं क्योंकि हम ऐसे ही एक इंफॉर्मेशन बना रहे हैं। तो मैं इसके लिए लॉरम इप्सम यूज करूंगी। इट्स जस्ट रैंडम वर्ड्स। अच्छा, थोड़ा से बढ़ा देते हैं सो इट माइट लुक गुड। सही है। इसके बाद हम एक और कंपोनेंट यूज करेंगे बूटस्ट्रैप का, बटन, और उसको क्लास देंगे BTN। और इसमें हम क्या करेंगे, क्लिक फॉर मोर डिटेल्स लाइक
बटन क्यों नहीं आ रहा? ओ अच्छा अच्छा, बटन मैंने इस कॉलम में लिखना था, मैंने बाहर लिख दिया। यस, यहाँ पर आ रहा है। इस बटन को हम कलर स्कीमिंग भी है बूटस्ट्रैप में, तो हम इसे कलर देंगे BDN BG डार्क, नो डेंजर विल बी बेटर। यस, ये भी बूटस्ट्रैप के फीचर्स में आता है। इसके बाद हम एक और सेशन बनाते हैं। अब उसमें हम कार्ड्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि कार्ड्स क्या होता है। इसमें हम क्या करेंगे कि लेट्स से सर्विसेज या फीचर्स ऑफ बूटस्ट्रैप। ओके, मैं ये ऐसी क्लास दे रही हूँ दिखाने के लिए कि मतलब हम कर क्या रहे हैं। तो एज यूजुअल हम एक हेडिंग लेंगे, लाइक इससे क्लास दे देती हूँ मैं हेडिंग, और लाइक फीचर्स ऑफ बूटस्ट्रैप। तो हम फिर से इसे ग्रिड सिस्टम में लेंगे, एक रो लेंगे, हम उसे डिवाइड करेंगे। लाइक हम 4 कार्ड्स लेंगे, तो हम इसे 3 में डिवाइड कर देते हैं। आर्च में अगेन आर्च में ये लगा 3, मीडियम में 4, एंड मोबाइल में तो ये पूरी ही साइज लेगा। और अब क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ कार्ड्स यूज करने जा रहे हैं, तो मैं पहले कार्ड यूज करूंगी। अब कार्ड में हम एक इमेज यूज करेंगे जो कार्ड के मतलब टॉप पे होगी। इमेजेस एंड लेट्स से के कस्टमाइज। तो ये बूटस्ट्रैप की एक फीचर है कि हम इसे इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, इसको भी रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा, तो उससे क्लास देनी पड़ेगी इमेज फ्लूइड। यस, उसके बाद हमने कार्ड का, ये एक कार्ड का टॉप है। तो अब कार्ड पे जब हम कोई भी कुछ लिखने जाते हैं ना, तो कार्ड बॉडी एक क्लास है जिसमें हम बॉडी कार्ड के डिटेल लिखते हैं। कार्ड बॉडी, उसमें हम लेट्स से एक H1 ले लेते हैं। कार्ड टाइटल, ये भी एक क्लास है कार्ड्स की, जिसमें हम मतलब कस्टमाइजेबल फीचर लिख देते हैं। सही है, अब H1 ही लेती हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। उसके बाद कार्ड टेक्स्ट भी होता है, जो कि एक्चुअल में पैराग्राफ होता है कार्ड टेक्स्ट। और हम रैंडम सा पैराग्राफ लेंगे, लॉरम लेट्स से 10। यस, इसके बाद फिर एक और कार्ड की क्लास आती है, वो होता है कि कार्ड बॉडी एंड कार्ड फुटर। कार्ड फुटर में यूजुअली एक बटन होता है या लिंक्स देते हैं हम। जैसे बटन लेंगे यहाँ पर, इस बटन को भी हम एक और इसमें भी क्लास आती है, वो है कि कार्ड लिंक, मतलब लिंक्स भी होती है ना, तो हम इसे क्लास दे देते हैं कार्ड। दैट इज जस्ट क्लिक। लेट्स सी हमने क्या बनाया अभी। ओके, हमें जो मेन क्लासेस थी हम तो वो ऐड करना भूल ही गए। वो होती हैं BGN, से बैकग्राउंड कलर देते हैं BG सक्सेस। मैं इसे कॉपी करूंगी और मतलब 4 बार करूंगी, क्योंकि हमें 4 कार्ड्स बनाने थे।
हम इसकी इमेजेस चेंज कर देते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस ये भी बूटस्ट्रैप की एक फीचर है। और उसके बाद लेट्स से मोबाइल फ्रेंडली, एंड देन देयर इज लास्ट में क्या रहता है, लाइक इट हैज अ ग्रेट कम्युनिटी। लेट्स सी, सही है। हमने नेवा यूज़ कर लिया, हमने उसके कार्ड्स यूज़ कर लिया, कैराजोल यूज़ कर लिया। तो अब हमारे पास क्या रहता है, हमें बस दिस इज द लास्ट स्टेप, दैट इज फॉर्म्स। मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म, मतलब बूटस्ट्रैप में फॉर्म्स भी आ गए हैं, वो तो शुरू से थे। हम फॉर्म डायरेक्ट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से उठा लेते हैं। कैन दैट बी, ओके हम यहाँ से उठा नहीं लेते, हम जस्ट आइडिया ले लेते हैं। ओके हमने फॉर्म लिया, एंड देन उसके अंदर हम एक लेते हैं डिव, जिसमें होता है फॉर्म ग्रुप। उसके बाद हम एक लेबल लेंगे, क्योंकि लेबल ठीक है, नेम शुड बी लाइक यूजर नेम। कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बन रहा है तो जस्ट इसीलिए। सो इनपुट के लिए कौन सी क्लासेस हैं यहाँ पर, फॉर्म कंट्रोल। हम पहले तो एक आईडी दे देते हैं जो हमने लेबल के फॉर्म में दी है, आईडी नेम। देखते हैं क्या बना है। यस यहाँ पे इसी को मैं कॉपी करूंगी, एंड लाइक पासवर्ड कर देते हैं हम इसे, और इसका टाइप भी चेंज कर दें पासवर्ड। इसकी एक क्लास है जो कि है आई गेस फॉर्म कंट्रोल। वो फॉर्म कंट्रोल क्या करती है कि पूरी जितनी की उसके पेरेंट क्लास की वेट है वो उसकी ले लेता है। लेट्स सी इफ आई रिमेम्बर इट राइट, फॉर्म कंट्रोल, यस सही है। फिर हम फॉर्म में एक सबमिट बटन होता है, वो हम ले लेते हैं इसी में ही। BDN, BJ, सबमिट, टाइप सबमिट। पीछे वार्निंग होता है आई गेस। बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा है इससे, यस सही है। सो हमने चारों कंपोनेंट्स यूज कर लिए। सो दिस इज द आई गेस द एजेंडा ऑफ द सेशन।
किसी को कोई सवाल हो? We are open for questions now. Hello. Hello. Would you please summarize your session? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी हाँ। अच्छा Yeah, Anila, मतलब I have a जी suggestion. Can you make the code available for the attendees as well? the code that I have written right now. Yeah, Yes, I just can. just put it in the gist and share the link if you can for starters. Like for me as well, I like this code very much, honestly. Okay. Yeah, sure, I can. Thank you. So, guys, we will be needing your feedback. It was my first tech talk, so first session. So I'll be needing your feedback. तो लास्ट में एक फीडबैक फॉर्म होगा, वो आप फिल कर दीजिएगा. एंड कोई क्वेश्चंस हो आपको तो पूछ लें. I guess no questions. Can you please walk through the code again and explain a bit more? Like summarize your session, entire session, crux of entire session. ओके तो हमारा सेशन था बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के. उस पे कौन से कंपोनेंट्स होते, तो मैंने सिर्फ 4 ही कंपोनेंट्स उठाए. क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बूटस्ट्रैप बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था. एंड मेरे फ्रेंड्स से कॉपी पेस्ट करे तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था. मैंने एक एक क्लास को पढ़ा था, फिर समझ आया कि ऐसे होता है. फिर उसके बाद मैंने कॉपी पेस्ट करना सीखा. तो मैं ये चाहती थी कि जैसे मैं सीखी हूँ वो लोग भी ऐसे सीख लें. तो मैंने 4 कंपोनेंट्स उठाए और सिंपली उन्हें ऐसे ही एक-एक करके उनकी क्लासेस इनपुट करती गई. आई फॉरगॉट सम ऑफ द क्लासेस. हेलो. Yeah, that's it. Yeah, I'm listening. I'm listening. It's all right. Yeah. So I guess it's over. Yes, this is it for today. और मैं अभी अपना कोड शेयर कर देती हूँ जो अभी मैंने बनाया है. All right. Thank you so much for such an informative session. Hope to see Thank more you. from your side. ओके, वी आर एंडिंग दिस सेशन नाउ. एंड इस सेशन की जो स्लाइड्स हैं और उसके अलावा जो कोड है आपको इसी चैट में मिल जाएगा. और उसके अलावा we'll also provide you all the feedback form in the end of chat. And thank you very much.